let us begin our chapter now. Okay, so last time we had studied that this story is about Ayana Patappa, who is grieving about his son's death. Okay? His son, whose name is Kuzma Ionich, has died a week ago, and he was not able to share his grief, to pour his grief out of his heart. He was not able to do so. He was not finding anyone with whom he could share his grief. So after 1 week, because he was a cab driver or a sledge driver, he came back to work after just 1 week of his son's death, and he's totally devastated. He's totally broken because he is grieving. Okay, he is full of grief. So that is why he is lamenting his son's death. Lament का मतलब होता है दुख. ठीक है, तो कुज़मा आयोनिच, he is the son who has died a week ago. हमें इस पूरी स्टोरी में कुज़मा के बारे में बस इतना ही पता होता है कि कुज़मा was a young guy who died a week ago. Before the story started, story when it started, उसके 1 वीक पहले कुज़मा की डेथ हो जाती है. हमें इतना पता चलता है कुज़मा के बारे में. उसके बाद थ्रू आउट द स्टोरी, दिस आयोना, दिस प्रोटैगनिस्ट, दिस मेन कैरेक्टर tries to share his feelings, share about the death of his son, the details of the death of his son with several fairs and several people, not just fairs with but with other people as well. But every time he fails to do so because all the people just abuse him, or they never listen to him. They don't pay attention to the grief of an old man, because Iona was an old man. We get to know when we read this story further. Okay, till then I hope it's clear. Madhu Bhatti, voice is not clear. Others, are you able to hear me? आपको समझ में आ रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? Like, Madhu Bhatti, please check your internet connection. Okay. Fair 1. सबसे पहला पैसेंजर होता है आयोना का, वो होता है एक ऑफिसर. ही इज वेयरिंग अ लॉन्ग ग्रेट कोट, ओवर कोट पहनता है ऑफिसर, एंड ही सिट्स इन the cab which Iona owns. And in the beginning, although ठीक है, हम beginning की बात करते हैं. स्टोरी की beginning ऐसे होती है कि पूरी स्नोफॉल हो रही है, ट्वाइलाइट हो रहा है, सर्दी का टाइम है. तो ये सारी चीजें क्या बताती है? द ग्लूमी एटमोसफियर, सेट्स द ग्लूमी एटमोसफियर ऑफ द स्टोरी. और वो उस तरह से बताती है, सेट कर देता है. हमें पता चलता है कि आयोना इज सिटिंग मोशनलेस, जस्ट लाइक his horse is also sitting motionless. He is standing motionless. बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है दोनों में. स्नो स्टार्ट्स कवरिंग बोथ ऑफ देम. तो दिस शोज दिस नॉन मूवमेंट, दिस इमोबिलिटी. इमोबिलिटी का मतलब होता है जिसमें मूवमेंट ना हो किसी तरह का, ठीक है, हलचल ना हो. तो दिस इमोबिलिटी शोज दैट आयोना वाज लॉस्ट इन ग्रीफ, ही वाज लॉस्ट इन डीप थॉट्स. ओके, और ये डीप थॉट्स के बारे में, ये डीप थॉट्स क्या होते हैं ये हमें तभी पता चलता है जब आयोना पहली बार इस ऑफिसर के साथ कुछ शेयर करने की कोशिश करता है. एंड ही सेज माय सन डाइड दिस वीक. ओके, जब वो ऐसा बोलता है तभी हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली वो थॉट्स क्या थे जो आयोना को बॉदर कर रहे थे. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. आप मुझे मैं जो भी बोलती जा रही हूँ आप मुझे एक बार बताते जाना चैट बॉक्स में. आई होप इट्स क्लियर. तो आप लोग मैसेज करिए कि हाँ क्लियर है या नहीं है, जो कुछ भी है, ताकि मैं आगे बढ़ूँ. ठीक है. So Iona's first fare is officer who is wearing a long coat. He wants to go to the Viborg way. ठीक है, वो Viborg way में जाना चाहते हैं. वो कैब को, like Iona की कैब को क्या करते हैं, हायर करते हैं. Now he starts riding that cab, and he turns to his fare. The Iona, what does the protagonist does? He turns to his fare, he turns around and sees, he looks at the officer. ठीक है, तो he says in a soft murmur. पहली बार जब वो बोलता है एक बहुत छोटी सी murmur होती है. ठीक है, तो he says that my son died this week. Officer in the beginning seems interested. Officer शुरुआत में थोड़े इंटरेस्ट लेने के बाद बोलते हैं ओके, so what did he died of. ठीक है, कि उससे उसकी डेथ किस रीजन की वजह से हुई, वो ऐसा पूछता है. So
when officer says this, when officer asks this, Iona को लगता है कि this officer might be the person with whom I would be able to share all my grief. So what he does, he turns himself around fully. ठीक है, 360 डिग्री पे वो घूम जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है. तो यू कैन, आई होप यू कैन इमेजिन किस तरह से वो लग रहा होगा जब वो पूरा उल्टा हो गया होगा. तो ऑफिसर क्राइज एंड ही अब्यूजेस हिम. ठीक है, ही सेज वर्ड्स लाइक ओल्ड डॉगी, लाइक यू डोंट know how to ride anything, how to ride a horse. तो वो इस तरह के words use करता है which are absolutely disheartening and which are absolutely, you know, harsh towards a person, upon a person who is suffering from a grief. तो ऐसे person के लिए वो छोटे से words भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा harsh होते हैं. ठीक है, तो आयोना अब उसकी डांट सुनकर फिर से आगे घूम जाता है, but he tries several times to turn and look at his fare, but the fare, that is the officer, he has closed his eyes by then and he tries to ignore Iona. ठीक है, so that was the first failure that Iona faces in sharing his grief. Second time, his second fare comes and this fare are 3 drunk men. Okay, young men हैं, इनमें से 2 men कैसे होते हैं, कोई बता सकता है? These 2 people are, these 2 men are, out of these 3 men, the 2 men are, can anyone tell me? I had shared this story with you quite a long time ago. Yes, these 2 people are tall and lanky. Very good, those who have answered, very good. These 2 people are tall and lanky and the other one is short in height as well as he is hunchbacked. Okay, hunchback means उसकी वो लोग like वो क्या है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है, उसकी स्पाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उस वजह से वो थोड़ा झुका हुआ है, बेंड है, इस तरह से रहता है वो. ठीक है, तो स्मॉल एंड हंचबैक. सो ये तीनों लड़ते लड़ते आते हैं उससे इसके पास एंड दे हायर आयोना विद अ लोअर करेंसी. ठीक है, एक छोटे से अमाउंट ऑफ मनी के साथ वो इसे हायर कर देते हैं. अब आयोना अगर देखा जाए तो आयोना को भी लगता है कि ये फेयर प्राइस नहीं है जो उसे मिली जा रही है, बट स्टिल ही डजंट माइंड एट ऑल बिकॉज हिज ग्रीफ इज मच हायर देन द प्राइस. उसका ग्रीफ उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी उस प्राइस जो उसे मिल रही है उससे ज्यादा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई ही डजंट से एनीथिंग एंड ही laughs at everything that these 3 young men talk about. ठीक है, why? Because he tries to distract himself from the grief for some moments, right? And he tries, he actually waits for these 3 young men to calm down, to silence up so that he can share his grief. So this is the second time that this Iona tries to share his grief. When he actually succeeds in calming them up, जब ये तीनों silent हो जाते हैं, then he says that my son died this week. Again he repeats that same phrase that my son died this week in order to try to explain the details, in order to try to share his grief. But what reply does he get? The short and hunchbacked person replies that this we all shall die. He replies that हम सभी को एक ना एक दिन मरना है. So this reply is not actually convincing. ये आपका दुख कम नहीं करता है बल्कि आपके दुख को और ज्यादा बढ़ा देता है, right? Because आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले इंसान को आपके लिए कोई sympathy नहीं है, किसी तरह का कोई compassion नहीं है. That is why he doesn't say anything although, but still he feels disheartened. He feels as if he has been hit hard. ओके, सो इतना समझ में आया आपको? ये हमारी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. इतना समझ में आया? देन आई विल मूव ऑन. जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी. क्लियर है ना? ओके, सो लेट अस मूव ऑन. इन दोनों पीपल को, इन दोनों मतलब इन तीनों यंग मैन को उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के बाद ही ट्राइज टू गो, वो आगे बढ़ रहा होता है, तब उसे एक हॉल पोर्टर दिखाई देता है. ठीक है, हॉल पोर्टर इज अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ कम्यूटिंग गुड्स इन अ होटल. ठीक है, होटल के अंदर चीजों को, हो सकता है वो लगेज हो या कुछ हो, उन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम, मतलब
होटल में अलग अलग रूम्स में पहुंचाने का काम होता है हॉल पोर्टर का, ठीक है। तो हॉल पोर्टर उसका थर्ड पर्सन होता है, ऑल्दो ही इज नॉट अ पैसेंजर, ही इज नॉट अ फेयर, बट स्टिल he tries to share his grief with the hall porter because it is the night time and he can find this person. So he tries, he approaches this person and he says, वो ऐसा पूछता है, what sort of time is this dear friend, ठीक है। अब इसके दो इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं दिस पर्टिकुलर सेंटेंस के, व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इज दिस, ठीक है। अब नॉर्मल अगर हम पूछे तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो टाइम पूछ रहा था कि टाइम क्या हो गया है ना। कोई भी नॉर्मल हम लोग पूछेंगे तो हम क्या समझेंगे कि वो क्या पूछना चाहता है, आयोना वो टाइम पूछना चाहता है। बट इन एक्चुअल अगर हम इसे इसका डीपर मीनिंग ले, सी लिटरेचर में हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस का कोई ना कोई मीनिंग होता है जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखता है, हमें उसे डीपर जाना पड़ता है समझने के लिए, ठीक है। तो इसको हम अगर दूसरी तरह से देखें, अगर लिटरेरी वे में देखें तो हम ऐसा समझ सकते हैं, हम ऐसा जान सकते हैं कि जो आयोना है वो इंसानों के लिए ये बात कह रहा है कि देखो दोस्त किस तरह का टाइम आ गया है कि लोगों को खुद के अलावा किसी और का दुख दिखता ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग दैट आयोना ट्राइज टू से, बट जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, जो हम लाइक हमें भी ऐसे ही लगा जिस तरह से हॉल पोर्टर को ऐसा लगा कि वो टाइम पूछ रहा है, तो ही सेज, वो टाइम बता देता है उसे और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, ठीक है। तो इतना रूडली दिस हॉल पोर्टर सेज, this reply actually doesn't help Iona again, and tired he goes with his horse to his stables, जहाँ पर उसका घर है, जहाँ पर वो रहता है, थक हार के वो वहां पर चला जाता है। उसकी कोई आमदनी नहीं होती है, उस पूरे दिन में कोई अर्निंग नहीं हुई होती है, स्टिल वो अपने हॉर्स को देखता है, उसका हॉर्स क्या कर रहा होता है, कुछ मंच कर रहा होता है, ठीक है। वहां पर वो देखता है एक फेलो कैबमैन को, ठीक है, उस चौथा पर्सन स्टोरी में जिसके साथ वो अपना ग्रीफ शेयर करने की कोशिश करता है, चौथा ह्यूमन बीइंग इज अ फेलो कैबमैन। फेलो कैबमैन का मतलब है उसी की जैसे, जैसे वो कैबमैन था बिल्कुल उसी की तरह से एक और कैबमैन उसे मिलता है। वो रात के टाइम पे सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग सो रहे होते हैं उस टाइम पे। फेलो कैबमैन, ये जो कैबमैन है उसकी क्या होती है, नींद एकदम से खुल जाती है, तो वो वहां पर जाता है, उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आर यू अवेक, आर यू, डू यू वांट एनी ड्रिंक। तो बोलते हैं नो आई डोंट वांट एनी ड्रिंक, आई जस्ट वांट अ वाटर, ठीक है। तो वो पानी पीता है, तो आयोना को ऐसा लगता है कि शायद ये जग गया है तो शायद ये मेरी बात सुन लेगा, ठीक है। तो आयोना सेज दैट माय सन हैज डाइड दिस वीक एंड आई एम नॉट एबल टू शेयर माय ग्रीफ विद एनीवन येट, ठीक है। वो ऐसा बोलता है आयोना, और जैसे ही वो कैबमैन की तरफ देखता है ये पता करने के लिए कि उन आयोना की कहे हुए इस वर्ड का इम्पैक्ट फेलो कैबमैन पर क्या पड़ा है, तो वो ये पाता है दैट द कैबमैन इज अस्लीप अगेन। वो कैबमैन है जो है वो फिर से नींद में चला जाता है और उसकी कोई भी बात सुनी नहीं जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयोना लाइक जो नैरेटर है, अब जो एक्चुअली जो नैरेट कर रहा है ये पूरी स्टोरी, वो ये बताता है, उसके थ्रू हमें ये पता चलता है नैरेटर के थ्रू कि देखा जाए तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उसके आसपास बहुत सारे पीपल है, ही कैन फाइंड एनीवन, बट नॉट अ सिंगल पर्सन इज विलिंग टू लिसन टू दिस ओल्ड मैन, नॉट अ सिंगल पर्सन इज विलिंग टू लिसन, टू शो हिज कंपैशन towards the old man, towards the grief of the old man। अगर देखा जाए, अगर हम ओल्ड मैन को देखें तो हम उसे देखते ही बता सकते हैं कि ये जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज्यादा डिवास्टेटेड है, लाइक उसका ग्रीफ अगर वो पोर करे अपने हार्ट से, अगर वो किसी को बताए, तो कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है नरेटर के थ्रू कि पूरी धरती उसकी ग्रीफ से भर जाए। मतलब इतना कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा उसके मन में ग्रीफ था, येट not a single person was able to see that grief, to realize that grief that was happening, that the Iona was
एक्सपीरियंसिंग। ओके, तो ये बात हमें नैरेटर के थ्रू पता चलती है। इस स्टोरी में आप जब जब पढ़ोगे तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, बहुत सारी चीजें देखी जाएगी, आप लोग देखोगे, जो कि मैं यहाँ पर क्लास में नहीं बता सकती। उसका मजा, पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो आप जब तक वो पढ़ोगे नहीं तब तक यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फुल meaning of that text. So that is why I ask you again and again to keep reading all these things. ठीक है, आप लोग पढ़े इस चैप्टर को, बिकॉज मैं लाइन बाय लाइन करवाती, लेकिन यहाँ पर सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू गो लाइन बाय लाइन, अदरवाइज हमारे हफ्ते निकल जाएंगे, वो स्टोरी कंप्लीट नहीं होने वाली। ठीक है, दैट इज व्हाई आई वांट यू ऑल टू रीड दैट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो जब फेलो कैबमैन से भी वो परेशान हो जाता है, लाइक कैबमैन भी उसकी बात को गौर नहीं करता है, तो फाइनली वो अपने हॉर्स के पास जाकर बैठ जाता है। By the time he visits the horse, he arrives at the stables. His horse is munching some hay. ठीक है, अब हॉर्स क्या खाते हैं? Can anyone tell me? हॉर्स का खाना क्या होता है? घोड़े क्या खाते हैं? Can anyone tell me? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मुझे, हॉर्स क्या खाते हैं? What do horse eat? कॉर्न, ये एग्जैक्टली, वो क्या खाते हैं? कॉर्न खाते हैं, चने खाते हैं, राइट? ये सारी चीजें खाते हैं। बट सिंस आयोना ने उस वक्त कुछ नहीं किया होता है, कोई अर्निंग नहीं होती है, he was not even able to buy corn for his horse, for his beloved horse. उसके पेट के लिए भी वो कॉर्न खरीदने तक के उसके पास पैसे नहीं थे। तो बट द हॉर्स डजंट कंप्लेन, उसके पास कॉर्न नहीं था, स्टिल शी वॉज ईटिंग ग्रास। हमें पता चलता है कि जो हॉर्स है वो फीमेल है, ठीक है, तो शी वॉज ईटिंग ग्रास, शी वॉज मंचिंग ग्रास। ओके, एंड जो आयोना है वो पास में बैठता है उसके, एंड ही ट्राइज टू से दैट सी not a single person has listened to me, but my son died, Kuzma Ionis is no more. और वो उसे इस तरह से बताता है जिस तरह से हॉर्स खुद अपने आप को उस चीज से, उस कंडीशन से क्या कर सके, रिलेट कर सके। वो इस तरह से बताता है उसे, क्या बताता है कि इमेजिन करो, वो अपने हॉर्स से बात कर रहा है, इमेजिन, ठीक है, ये सोचो, आप लोग इमेजिन करिए, वो अपने हॉर्स से बात कर रहा है और उसे ये बोल रहा है कि अपने हॉर्स को इमेजिन करने के लिए ही सेज कि इमेजिन यू आर अ मदर ऑफ अ म्यूल, तुम एक तुम मदर हो, तुम्हारा एक बच्चा है, तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तब तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें कैसी फीलिंग आएगी? तो व्हेन हॉर्स हियर्स दिस थिंग, शी व्हाट डज शी डू, शी ब्रीथ्स ऑन आयोनाज हैंड। वो क्या करती है एंड में, वो उसके हैंड पर ब्रीथ करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि एटलीस्ट दिस एनिमल वॉज लिसनिंग टू आयोना। इंसानों ने तो नहीं सुना उसकी बात, बट एनिमल, हॉर्स जो कि एक एनिमल है, वो उसकी बात सुन रही थी। तो आयोना फील सो ओवरवेल्म, आयोना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है, एंड ही says all the story, all the details of the death of Kuzma, कि what happened to Kuzma, how did he die, what did he say before he died, और वो सारी डिटेल्स कि डॉक्टर्स ने क्या कहा उसे, वो सारी चीजें वो क्या करता है, उस हॉर्स को बता देता है फाइनली। तो फाइनली स्टोरी के एंड में कंक्लूजन ये निकलता है कि आयोना इन द एंड ऑफ द स्टोरी गेट्स हिज क्लोजर of his grief by narrating the whole story to the horse. ठीक है, वो अपनी सारी स्टोरी किसे बताता है, हॉर्स को बता देता है, और तब जाकर उसे थोड़ा हल्का फील होता है, और स्टोरी जो है इसी पर एंड हो जाती है। तो दिस वाज द स्टोरी, इस तरह की स्टोरी है। इस स्टोरी में मेनली ग्रीफ के बारे में बताया गया है, इट इज पेसिमिस्टिक इन टोन, और दिस स्टोरी एक्चुअली सैटिराइजेस द हार्शनेस, द हार्ड हार्टेडनेस, द स्टोन हार्टेडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स सेल्फ सेंटर्ड है, किस तरह से ह्यूमन बींग्स डू नॉट फील इट नेसेसरी टू फील कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स। तो दिस was the story, ये स्टोरी इस बारे में थी। आई होप आपको समझ में आई हो। प्लीज टेल मी, अगर आपको आई है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको नहीं आई है तो आप चैट बॉक्स में देखिए। स्टोरी यहाँ पर एंड होती है, इस तरह की स्टोरी थी। सो इज इट क्लियर? एनी काइंड ऑफ डाउट, थोड़ा सा भी डाउट है, यू कैन यूज द रेज हैंड ऑप्शन।
टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। समझ में आ गया आपको स्टोरी? अच्छे से आई या फिर सिर्फ यूं ही यस मैम कर रहे हो? अच्छे से समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का? पक्का? फिर देखना, एग्जाम्स होने ही वाले, तुम्हारे टेस्ट होंगे, फिर टेस्ट में मैं ये मार्क्स दूंगी, मैं ये सारी चीजें डालूंगी, इसमें कुछ भी डाल सकती हूँ सबसे पहली बात तो। फिर अगर डाउट्स आए ना उससे पहले, अगर एग्जाम से पहले डाउट्स आए ना, फिर देखना अभी कुछ नहीं बोल रहे हो तो इसलिए कह रही हूँ अभी वी हैव सम टाइम, हमारे पास अभी 5 से 7 मिनट है। सो इफ यू हैव एनी डाउट डू टेल मी। नो डाउट? झलक खत्री नो डाउट पक्का? कोई डाउट नहीं है? व्हाट मोमल, क्या लिखा है आप मैंने? इफ वन ट्रीटेड द लाइक ऑफ यू विथ सेरेमनी वन वुड हैव टू गो ऑन फुट। व्हाट, क्या लिख रहे हो? अच्छा आप ओके ओके आप इसका लिख रहे हो? कहाँ पे बेटा आप मुझे बता सकते हो? व्हाट पेज नंबर 5? अच्छा स्टोरी में, जस्ट मिनट। कहाँ पे पेज नंबर 5 में? पेज नंबर 5 में कहाँ पर है? कौन सा पैराग्राफ है? पैराग्राफ बता दो मुझे। अच्छा ओके ओके, आई गॉट इट। देखो ये बात ये जो ऑप्शन है, वी हैव 10 मिनट्स ओके। हम ये जो बात जो ये डाउट है ये पेज नंबर 5 पैराग्राफ 3 में है। व्हेन, जब सेकेंड फेयर से आयोना वॉज आयोना सेकेंड फेयर को अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा था। When he was riding it very slow. जितने भी फेयर्स के साथ इसने लाइक राइड की है ना, लाइक घोड़े को चलाया है अपने राइडर्स को अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंचाने के लिए, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी। अब हम सोच सकते हैं घोड़ा गाड़ी किस स्पीड पे चलती है, बट स्टिल दिस स्पीड वाज रियली स्लो। तो जो यंग मैन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जो हंच बैक है मेनली, वो भी उसे बहुत अब्यूज़ करता है, वो उसे बहुत धमकियाँ देता है कि तुम इस तरह से अगर धीरे धीरे चलाओगे तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो वो सारी बातें बोली जा रही थी आयोना को। एंड में वो बोलता है कि अगर तुम्हारी जैसी स्पीड में किसी को चलना हो तो इससे अच्छा तो मैं पैरों के ऊपर ही चला जाऊँ, मतलब मैं पैदल ही चला जाऊँ, अगर तुम इस स्पीड से चलाने वाले हो इस राइड को, इस कैब को। तो ठीक है, इसका मतलब ये है। समझ में आया मूमल? इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा मूमल? क्लियर? ओके, एनीवन एल्स? कोई और डाउट किसी को? ओके, नाउ this is a really very good thing that you people are reading this chapter. I want every one of you, each one of you to read this chapter, because इस chapter में बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो शायद मैं यहाँ पर कवर अप नहीं कर पाई होंगी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है मैं सारी आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स दे दूँ, बट स्टिल आंसर्स फ्रेम करने के लिए जो डिटेल्स आपको जरूरत पड़ेगी वो ये नहीं होगी। ये तो आपको लाइक स्टोरी समझाने के लिए है, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो आपको स्टोरी पढ़कर ही पता चलेगी।
समझ में आया? So that is why I want you all to read this story. Read each and every story. Poems जो होगी वो हम लाइन वाइज चलेंगे बिल्कुल, बिकॉज पोएम को हम नहीं कर सकते ब्रीफ, हमें पोएम्स को लाइन वाइज ही चलना पड़ेगा. बाकी सारी चीज़ें आई वुड वॉन्ट यू एंड आई विल आस्क यू टू रीड बाय योर सेल्फ. मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, और सी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने में भी हमें 3 दिन लग गए, 3 क्लासेस लग गई. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. हुड ओवर हिज हेड का मतलब क्या होता है? ऑफिसर जब पहन रहे थे, क्योंकि बहुत ग्रेट कोट पहना हुआ था, तो उसका हुड, हुड क्या होता है? हम बहुत सारे लाइक स्वेट शर्ट्स और जो हुडीज होती है उसमें कैप होती है ना पीछे, वो उसके ऊपर थी, वो उसके सर के ऊपर थी, उसका सर हुड से ढका हुआ था. दैट इज द हुड. ओके, समझ में आया कृष्णा? हुड का मतलब क्या होता है? हुड का मतलब जो पीछे जो कैप होती है हमारी स्वेट शर्ट्स के, हुडीज के, उसे बोला जाता है हुड. ओके, एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर है? क्या ये चैप्टर मैं कंप्लीट मानूं अपनी तरफ से? क्या ये चैप्टर कंप्लीट मानूं मैं? शुड आई कंप्लीट दिस चैप्टर? क्या आपको हर चीज समझ में आ गई है? बाकी डाउट्स आपको तभी आएंगे मेरे ख्याल से जब आप स्टोरीज पढ़ेंगे और आपको कुछ सेंटेंसेस समझ में नहीं आएंगे उसके बारे में, तब आपको लग सकता है थोड़े से डाउट. बाकी आई डोंट थिंक कि आपको मेन जो प्लॉट है, ये मैंने सब जो कुछ भी बताया वो एक प्लॉट का हिस्सा था. ठीक है, प्लॉट क्या होती है? जिसपे स्टोरी बेस्ड होती है, तो उसका हिस्सा है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो शुड आई एंड दिस मीटिंग? क्या मैं एंड कर दूं इस मीटिंग को? एंड शुड आई एंड दिस चैप्टर इज वेल? क्या हम दूसरे चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं कल? शुड वी? ओके फाइन. अब व्हाट विल वी डू? हम लोग क्या करेंगे? आई वांट यू ऑल टू आई वांट यू ऑल टू डू द क्वेश्चन आंसर्स. आप एक बार क्वेश्चन आंसर्स देखिए स्टोरी के. आप समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं, और उसके आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. ओके. फोल का मतलब होता है हॉर्स का बच्चा. जो छोटा हॉर्स होता है ना, उसको फोल बोलते हैं. ठीक है, हॉर्स जो बेबी हॉर्स होता है उसे हम बोलते हैं फोल. अब जरूरी नहीं वो बेबी हॉर्स ही हो, वो बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बेबीज को फोल ही बोला जाता है. ओके, ठीक है. सो शुड वी एंड दिस मीटिंग? क्या मैं एंड कर दूं? और ये चैप्टर क्या करना है? एंड करना है. Okay, okay. So it was really nice of you all to come. Today we have 22 participants. I'm really happy. I hope this chapter is clear to you, and I hope you enjoyed studying this chapter. I hope you all understood this chapter. So we will meet tomorrow again with a poem or a chapter we will discuss later. Okay, so thank you all for joining, and please join every class, please join every day, and please ask your friends to join too. Okay, so I will end this meeting. Thank you all for coming. Thank you. Goodbye. Have a nice day.